we learn the concept of weighted average. Very, 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 very important for us to learn this. Right? Very, very important for us to learn this. So what is weighted average? Weighted average basically means earlier हमने लिया था ना example. There were 5 friends. है ना? 5 friends are क्या 100, 120, 130, 125 and 115. ऐसा वेट था और हमें एवरेज निकालना था. एक पर्सन ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है. तो टोटल 5 पर्सन है ना. तो हमने क्या किया, इन सबका सम निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल 5 किया. Instead of that, if I give you data like this, whereas there are 5 friends, इसमें से two people weigh 100 kgs, then one person weigh 120 kg, and there are other 2 people who weigh 130 kgs. Right? I tell you like this, and I tell you, okay, now find average. You'll be like, okay, average is I'm gonna sum of everybody. So basically 100 is 2 times 100 plus 100 plus this 120 one person only plus 130 again 2 times. Or else I write it like this way. I write it like this. I'll be like 100 people plus 100 people, 100 kgs plus 120 wala 8 hai plus 130 wale 2 hai divided by this total 2 plus 1 plus 2, which is total 5. Right? So this gives me my answer. कितना आता है 60, 70, 80, 580, but sorry 116. करेक्ट. सो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ऐसा एवरेज होगा. So basically the data is given to you in such a way that they haven't said 100, 100, 120, 120, 130, 130. They just said there are 2 people with 100, 2 people with 130, and 1 person with. So in weighted average, we precisely call these things as weights. Weights का मतलब ऐसा है कि normal average में every data point that is given to you, each of these 100, 100, 100 was associated to 1 person only. They had equal weights. It was associated to 1 person. But here, each of these data point is not associated to the same amount of people. Right? So ideally what's happening is we are doing 100 into 2. This is 100 into 2 plus 120 into 1 because there is 1 person only plus 130 into 2 divided by total 2 plus 1 plus 2, which is basically it is value into weight. Value was 100 and the weightage given to you it was 2. Right? इन सबका एडिशन करते हैं. Summation symbol. We add value 1 into weight 1 plus value 2 into weight 2 plus value 3 into weight 3 divided by sum of all weights. This is what weighted average is all about. Sum of all weights, multiplication of the value and its weight, uska sum karo divided by the sum of all weights. This is what weighted average is. Do you understand the fundamental of concept of weighted average? When the values are given to you in such a way that every value is not associated to 1 person or one entity. Every value is associated with different entities. So when you have to add them, you have to take 100 2 times or 100 5 times. So instead of that, I just do 100 into 5, na? The value into its weight, right? Yes or no? Yeah. Weighted average is not taught as a concept of CAT, but I teach you why is because it's going to make your life extremely easy when you do allegation questions. Because I absolutely discourage my students to use allegation because generally it's confusing. ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं allegation भी पढ़ाऊंगी, but allegation is so conditionally applicable. It's so difficult to learn. I've often seen students just get confused with it. It's also sort of a shortcut. To determine that in which kind of question will that shortcut actually sabotage you, you won't know. But still, we will always take up allegation का method whenever it can be used. But I discourage. So उसके लिए weighted average is so universally available, applicable, so conceptually sensible. Conceptually हमें समझ रहा है ये क्या हो रहा है, right? Base concept हमें समझ रहा है, तो फिर अप्लाई करना तो easy हो जाता है, right? यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? The average of a group of 20 boys is 50. Average is 50. ये आ गया, ठीक है. And a group of 30, अच्छा. Okay. And then you have a group of 30 girls as 60. So this was sum of boys. This is girls.
right? The average score of the entire class. Average score of entire class is total sum, right? 2800 पूरा sum लेना पड़ेगा ना, divided by total number of people. Basically total यहाँ नहीं लिखती, नीचे लिखती है. So average, overall average is equal to overall sum, which is 1000 plus 1800, divided by total people, which is 20 plus 30, 50 people. So it is 2800 divided by 50. Yes or no? Yes or no? Right? So yes, मैंने लिखा है ना? So average we know that it is like this, right? इसी को हमें weighted average के लिए समझना है. Here value is what? I have to find average marks. So value is this marks 50 and 60, and these are the weights associated with it. If 50, there are 20 people with 50 marks. So total, ठीक है, weighted average is basically value is 50 into its weight 20 plus value is 60 into its weight 30 divided by total weight, sum of weights. Same thing. Same thing as above. It's just that it happened in one single sentence rather than taking so many steps for it. We were like, okay, the moment we know that there are two different groups, two different types of data, there is one girl and girls and boys, and there is a average associated with the boys, there is an average associated with the girls. We're like, okay, इसका value into इसका weight plus इसका value into इसका weight divided by total people, that total weight. That is your weighted average. Cool? No questions? चलो यहाँ पे करो. अच्छा, ये स्लाइड रिपीट हुई है, ये स्लाइड रिपीट हुई है. आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2. तो मैंने मेरी मम्मी के स्कूल के ऊपर क्वेश्चन बनाया, विच हैज इस सवाल का क्या बोलते हैं उसको, हकीकत नहीं, व्हाट इज द डिस्क्लेमर यू गेट बिफोर द अवार्ड. ऑलवेज गेट स्टक इन हिंदी क्योंकि वो मेरा थर्ड लैंग्वेज है. क्या है? वास्तविकता. आई लव इट व्हेन इट डज मी. इस सवाल का वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, और अगर कुछ ऐसे रिलेशन अगर पता चले, एनी कोइंसिडेंस, इसलिए क्या बोलते हैं इसको डिस्क्लेमर में, अभी इंग्लिश भी नहीं आ रहा मुझे. व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वेरी गुड. ओवरऑल पास परसेंट. व्हाट वी फाइंड? पास परसेंटेज. सो पास परसेंटेज इज आवर वैल्यू. वी हैव 3 वैल्यूज एंड वो 3 वैल्यूज के साथ 3 वेट्स एसोसिएटेड है. तो वेटेड एवरेज अरे अरे weighted average is basically this value into its weight plus this value into its weight plus this value into its weight divided by the total weight, which is 1000 plus 3000 plus 2400 divided by 6400 divided by 100. So average overall in the school 64% people passed. राइट? कैसे किया हमने? टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, क्लास सेक्शन ए में 20 में से 50% पास हुए. 20 में से 15% मतलब 20 में से 50% पीपल मतलब 10 लोग पास हुए थे, प्लस ये 50 में से 60% पीपल मतलब 30 लोग पास हुए थे, और ये 30 में से 80% पीपल मतलब 24 लोग पास हुए थे. सो टोटल 64 लोग पास हुए थे ऑन टोटल 100 पीपल. तो दैट इज 64%. वही तो आंसर आया, और वही तो हमने किया. 15 to 20, 50% to 20 gave me 10 ना. तो वो परसेंटेज ऐड नहीं किया इसलिए 10 100 आ गया. 10 मतलब 1000. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वेटेड एवरेज इज. चलो करो. तो आई वांट आंसर्स सो दैट आई फील लाइक हाँ वेटेड एवरेज इनटू मिक्सचर्स. सेम कॉन्सेप्ट ओनली. क्या है? एवरेज प्राइस निकालना है ना हमें. तो प्राइस कितनी है? ये एक प्राइस है, ये एक प्राइस है. वी हैव टू प्राइसेस एंड देयर एसोसिएटेड वेट्स. सो वेटेड एवरेज price 1 into its weight plus price 2 into its weight upon total weights. 170 by 11. कितना होता है 170 by 11? 11 1 11.
60, 11 5 are 55, 50, 11 4 are 44, 60, 11 5 are, तो ये होते रहेगा 2 decimals of 15.54 rupees per kg. Are we good on this? Good. इसमें ना एक चीज और समझनी होती है कि क्या होता है ना बेटा, एवरेज हम निकालते हैं, लेट्स से आई एम मिक्सिंग टू थिंग्स, ठीक है, इसका वैल्यू 10 रुपीज पर केजी था, इसका वैल्यू 20 रुपीज पर केजी था। आइडियली मेरा एवरेज 15 रुपीज पर केजी आना चाहिए था। अगर एक चीज 10 रुपीज पर केजी है और दूसरी 20 रुपीज पर केजी है तो मेरा एवरेज 15 आना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 किलो डाला और यहाँ पे 5 के साथ और एक डाल दिया, तो मेरा वेट 5 5 पे इक्वल था, बट फिर और एक एडिशन डालने के बाद वो झुक गया वेट। तो वो झुक गया, कहाँ झुकेगा, टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। किस साइड झुकेगा वो, टुवर्ड्स दिस साइड। इंस्टेड ऑफ 15 you got an answer more than 15, right? 15 or 20 and just a little more than 15. Why just a little more? Because 5 और 6 में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे 7 8 9 10 केजीज अगर डाल दिया होता तो वो वेट और झुकता है। इमेजिन अ बैलेंस था, एक डाला थोड़ा सा ही खिसकेगा, काटा बहुत 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 सारा खिसकेगा, तो वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो Am I expected to teach you allegations here? Yes, I am. How would you know what am I expected? पर मैंने क्या ध्यान में रखे वो स्पेस वाला, यही मैं तुम्हें बता दूंगी। तो अभी इसमें क्या है ना कि वी विल एक्सपेरिमेंट कि अलग अलग केजीज से क्या होता है। लेट्स से मैंने 7 केजी डाल दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने 7 केजी डाल दिया, 5 एंड 7, ठीक है, और फिर वो देखो वेट कैसा वो चेंज होता जाता है, ठीक है। लेट्स से कि दिस वाज नॉट 6, दिस वाज 7 केजी। सो देन व्हाट हैपेंस इज वेटेड एवरेज is equal to 10 into 5 plus 20 into 7, right, upon total weights 5 plus 7, which is 50 plus 140 divided by 12, which is 190 divided by 12, which is what? कितना हो गया ये बताओ बताओ। 12 ones are 12 and 70, 12 fives are 60, right? फिर 20 आया तो 16 के आसपास आना चाहिए ना आंसर, तो 8 जा 96 है ना, 15.8 समथिंग आएगा आंसर। I want you guys to give me answers यार। 15.83 fair, ठीक है। तो अभी देखो, और अच्छा ठीक है, चलो अभी इसको ये करो, ये इसको 8 केजी करो इंस्टेड ऑफ put it 8 kg. So weighted average is right, it is 50 plus by 13, which is 16 point something आ गया। 13 ones are 13, तो बचा कितना 80, 80 तो 6 जा 78, तो 20, तो 1 जा 70, 5 जा 16.15, right? तो व्हाट आर यू नोटिसिंग यू आर नोटिसिंग कि जो मैंने बोला तुमको कि तुम जैसे वो जो वेट था, मेरा वेट जो मैंने ड्रॉ किया था पहले, हमने ड्रॉ किया था, दिस वाज 10 पर केजी एंड दिस वाज 20 पर केजी, और आंसर हमारा 15 पर केजी आना चाहिए था। तो आइडियली, बट तुम जितना जितना यहाँ ज्यादा डालते जा रहे हो, वहां पे तुमने एक ज्यादा डाला तो सिर्फ 15.5 पर आंसर आया, और एक ज्यादा डाला तो 15.8 आंसर आया, और एक ज्यादा डाला तो 16.15 आंसर आया। ऐसे करते करते तुम डालोगे तो कभी आंसर 20 नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर 20 और 15 के बीच में ही आएगा, बट वो ऐसे आते रहेगा, इट विल स्केल और टुवर्ड्स 20 मूव होते जाएगी, समझ गए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड अगर तुमने इसका ज्यादा डाला होता, अगर तुमने 10 केजी वाली ज्यादा डाला होता तो वेट टुवर्ड्स 10 केजी जाते रहता, तुम्हारा आंसर 14 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग ऐसे आता। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस एग्जांपल, ओके। तो हमको एक बात होती है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि आंसर आएगा कैसा, ठीक है। तो इसको देख के हम समझ सकते हैं यार, आंसर देखो 10 और 20 के बीच में मतलब 15 आना चाहिए आंसर, बट बिकॉज 6 kg इज मोर, बट 5 और 6 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 5.5 के आसपास आंसर आना चाहिए,
जस्ट लाइक प्रिडिक्ट, ठीक है। यू रियलाइज यार 5 और 7 है, ठीक है, तो वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 16 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब लेट अस डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, is mixed with this, find the average price. Again, you have to find what average price. This is the value, value 1, value 2. Ratio दिया है 3:4, मतलब अगर ये 3 kg लिया है, तो ये 1 kg लिया है, right? So you're like, okay, weighted averages. You took this 3 times, plus you took this 1 time. Total you took 3 plus 1, 4 kg. Value into weight plus value into weight upon sum of weights, right? Which is how much? Yes or no? Right है, राइट है। तो ऐसे वेटेड एवरेज को हम मिक्सचर से करते हैं सॉल्व। चलो ये करो अभी, do this one, call by yourself, tell me the answer. So this is again same formula, but different thing asked. अब तक तुम्हें एवरेज प्राइस पूछे जा रहे थे, अभी एवरेज दे दिया है। What quantity of rice should be mixed with 10 kgs of this? So value into quantity plus value कितना है हमारा 50 है, value into weight upon total weight is equal to average, है ना, है ना, है ना। हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो दो कॉस्ट है हमारे पास, उनके वेट से मैंने मल्टीप्लाई किया। दिस बिकम्स 5x plus 500 is equal to 35x plus 350, right? So this becomes 30x is equal to 150. So x is 150 by 150 by 30, which is 5 kgs. सही है नहीं? अभी ये इसमें मैं एलिगेशन तुम्हें से हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग एलिगेशन, ठीक है। अभी हमने, हमको ये अप्रोच समझ गया है, वेटेड एवरेज का अप्रोच समझ गया है हमें। अब हम एलिगेशन की करेंगे कि एलिगेशन का एक बटरफ्लाई डायग्राम ऐसे, ये बटरफ्लाई बोलते हैं, एक्स डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एंड दिस माइट सीम लाइक अ सुपर शॉर्ट वे फॉर यू इंस्टेड ऑफ वेटेड एवरेज, बट वही है, कंडीशनली एप्लीकेबल है, जब सूझा तब सूझा, जब नहीं हुआ तब नहीं हुआ। तो हाउ इट हैपेंस इज कि यू हैव 12 ईयर, you have 48 here, one value versus the other value, ठीक है। and what is the mean? Let me just write, mean is 30, ये 12 था वैल्यू, ये था 48, राइट। अब यू हैव टू डू डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 18 है, राइट। एंड नाउ डू इसका डिफरेंस, ये भी 18 है। तो द रेशियो इन विच दीज टू विल बी मिक्स्ड इज 18:18। जिसका रेशियो ए टू बी इज 18:18, दैट इज 1:1, 1:1 रेशियो में आएगा। तो अगर इसका 8 kg लिया है, मतलब इसका भी 8 kg लेंगे, दैट इज व्हाई 8 वाज योर आंसर। So this is allegation. This method is called allegation, where you take the values of the two upper and the mean value बीच में, 12 and 8, 48 were the two values and the mean value was 30, and then you subtract like this to get the ratio in which two things are mixed. ठीक है, इसी को यूज करके, do you understand, इसी को अप्लाई करके let us try doing some other question also that we have done before. This is the fifth question that we did earlier. Wait, ये वाला क्वेश्चन that we did earlier, 5 kg हमारा आंसर आया था। अरे करो, राइस कॉस्टिंग दिस बी मिक्स्ड विद राइस कॉस्टिंग दिस, ओके। तो ये 5 रुपीज पर केजी, ये वैल्यू इधर लिखी, और 50 वाली वैल्यू इधर लिखी। एंड व्हाट इज द मीन वैल्यू, 35। व्हाट इज द मीन वैल्यू, 35। So then what is the difference here, 35 minus 5, 30, and what is the difference here, 50 minus 35, 15, right? So if you take ratio, what is the ratio, ये जो 5 rupees वाला a by b ratio कितना आया, 15/30, which is 1/2। तो रेशियो अगर 1/2 आया है और b को हमने 10 kgs लिया है, तो इसका कितना आएगा, 5 kg, and that's why 5 kg is your answer. Do we get allegation how it is done? सही है। तो ऐसे एलिगेशन सॉल्व होता है, एक है वेटेड एवरेज, एक है एलिगेशन, बोथ मेथड्स, बट वी आर गोइंग टू डू वेटेड एवरेज, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि
This might seem easy, but चलो करते हैं. Let us take third question. इसको भी करो solve. और चलो मतलब यही है थर्ड क्वेश्चन. ये करो, इसको भी सॉल्व करो. ये 10 होगा, ये 20 होगा, और एवरेज x होगा. दिस विल बी x माइनस 10 एंड दिस विल बी 20 माइनस x, है ना. और इन्हीं का रेशियो is given to you as 5/6, right? This becomes 120 minus 6x. और करो नीचे. This is 170/11 एग्जैक्टली जो हमारा यहाँ पे आया था, है ना. सेम आया था. तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है. ठीक है. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ एलिगेशन इज ऑल्सो डन. ठीक है. ये बेसिकली दो वैल्यूज और उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, और मीन जो होता है वो दो वैल्यूज के बीच का होता है, राइट. तो जो वैल्यू से मतलब छोटे, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिगर देन व्हाट एंड अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट एंड देन यू फाइंड रेशियोज आल्सो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एलिगेशन एज अ मेथड इज. एंड हियर वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ मतलब जो ग्रुप 2 का फर्स्ट पार्ट, बट एवरेजेस ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटली डन. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट एवरेजेस. नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न रेशियोज. ठीक है. और रेशियोज में भी एवरेजेस ओवरलैप होते हैं, रेशियोज में मिक्सचर्स ओवरलैप होते हैं. जो भी हमने मिक्सचर्स के क्वेश्चन देखे ना, कि 5 kg ऑफ दिस मिक्स्ड विद 15 kg ऑफ दिस एंड दैट, वो सेम चीज मिक्सचर्स रेशियोज के फॉर्मेट में भी आते हैं. सो वी विल लर्न रेशियोज, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन इन द नेक्स्ट क्लास, and from there we will take ahead and we'll learn mixture and aggregation as a chapter separately. Right, so this is it about today's class. If you have any doubts, you can stop or you can drop off. I will pause the recording.